किसके साथ आपने अलायंस किया? जिसको त्रिपुरालैंड चाहिए था, जिसने हताय कतौर में रोड ब्लॉकेट करके रखा था, जो अगरतला में रैली करता था और तब यहां में मार पिटाई होती थी। आप किसके साथ, आप उसके साथ अलायंस करने के टाइम त्रिपुरा नहीं टूट रहा था। हमारे साथ जब बात करते हैं, जब हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो उनको सुई लगता है, क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इसके लिए। We will negotiate, we will talk, we will not, we believe in the path of Gandhi, we believe in Swami Vivekananda, I believe in the path of Maharaja Bir Bikram. We will never indulge in violence. As a Hindu myself, I would never want Hindus who have been persecuted in Bangladesh to be persecuted further. So there should be a dialogue, but there should be a solution. And this is a problem which has to be solved by the government through negotiation, through talking, not through violence. I have a view, they have a view. बैठ के बात कीजिए, राइटिंग में दीजिए, बात करेंगे, कुछ मेरा बात मानिए, मैं आपके बात कुछ मानता हूं, लेकिन एक संग होकर बात कीजिए। किसी को आप हुर्रियत से बात कर सकते हैं, आप अल्फा से बात कर सकते हैं, आप एनएससीएन से बात कर सकते हैं, तो आप हमसे क्यों नहीं बात कर सकते? हम तो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। If BJP does not get magic number, then it may approach Tripura Motha for support, but on condition that Motha leaves its demand for separate state. On condition that they also give it to us in writing. What is their approach? Is it the same approach verbally? I don't want to talk to BJP. I want to talk to the government of India or to political parties who are in opposition. It is, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। देखिए, ये सब आज का जो ट्राइबल है ना, जो इंडिजिनस है, वो बेवकूफ नहीं है। हम भी जानते हैं कि 2018 में क्या बोला गया था और क्या हुआ। इसी के लिए तो आज कोई विश्वास नहीं कर रहा है। आप राइटिंग में दीजिए आपका क्या सोल्यूशन है, मैं पब्लिक प्रिंट मीडिया के सामने लगा देता हूं, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन बंद दरवाजे में चुपचाप क्यों बात करें? Hypothetical question is, I'm not a. I'm just expecting a scenario. You have not aligned with the BJP because the central government, BJP led central government, they have not given you a written assurance that they will, give you greater Tripura. Okay. No, they have given us no assurance. That is what. No, not written. They have given us zero assurance. Even if they had given us any assurance, they have given us no assurance in writing. First, tell them to give us even one assurance in writing. They have given us zero assurance in writing. Not Greater Tripura. They have given us zero assurance. And if the elections go up a fractured mandate, can we see a scenario where the Tripura Motha giving support to the BJP? We will not sit in the government. I am making it very clear. यहाँ में हमारा MLAs भी है. We will not sit in the government or support any government till our demand for our constitutional solution is not met in writing. We will rather sit in the opposition than actually support any government. हम लोग वो गलती नहीं करने वाले जो IPFT ने किया कि जीतने के बाद 2 मंत्री को मंत्रिमंडल में बैठाया गया और उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं कर सके। मैं अपने यहाँ में MLA कैंडिडेट्स के सामने क्लियरली बोल रहा हूँ कि हमारा कोई भी MLA गवर्नमेंट में नहीं बैठेगा, मंत्री नहीं बनेगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होता। You made an attempt to merge IPFT with your party. हाँ. So what happened? It did not work. It didn't happen because I don't have so much money like BJP. It's very clear. I mean, what else could be the reason? IPFT is not talking about IPFT is irrelevant now. It's a good party. God bless their leaders, but IPFT is no longer what it was. It's very sad, but it's the truth. What did they want from you when you proposed them for merger or an alliance? उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया जिस दिन बीजेपी का फोन आया। हाँ, मेरे पास I don't have so much money, my friend, but then what, money is not everything in life. Sometimes public image is also very important. अगर पैसा ही सब चीज होता तो इस देश में कुछ नहीं रहता। ये देश में अंग्रेज के पास हिंदुस्तानी के से ज्यादा पैसा था, लेकिन एक दिन इंग्लिश को भी छोड़ना पड़ा क्योंकि एक जज्बा था, एक ईमानदारी थी। जो लोग ईमानदार नहीं वो पैसे के पीछे भागेंगे। We see the Tripura Motha in a very good position in the
seats. Thank you, sir. What about the 22 seats where We are in very good position, 22 seats. If you see, we have our former MLA Ashish Das here. We have Arup from Rishyamukhi standing. We have Shah Alam. We have Bilas Malakar. We have apna Samir Basu. Then we have got अपना क्या बोलते हैं अबू खैर मियाँ. हमारे पास we have got candidates and we are doing very well. अरे आप थोड़ा तो अप्रिशिएट कीजिए. जो 60 साल में कोई आंचलिक पार्टी ने किसी को चांस नहीं दिया, हमने चांस तो दिया. हम तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम. हमने 60 इयर्स में नो रीजनल पार्टी इज गिवन अ रिजर्व सीट टू अ वुमन, ट्राइबल वुमन. हमने इस बार 6 औरत को दिया और रिजर्व सीट से भी दिया. आज तक एक आंचलिक पार्टी से एक औरत को एमएलए नहीं बन सका. इस बार तो बनेगी ना. हम तो सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. आपको इससे ये सब चीज को तो थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए. You are contesting without any alliance, and Congress and CPM, they are fighting together in a seat sharing arrangement. So don't you think that will divide the NDP votes and ultimately help BJP? कांग्रेस हेल्प बीजेपी इन 2018. बीजेपी का वोट तो 1.45% था 2013 में. तो 2018 में सब क्या ओवरनाइट पैदा हो गए क्या? ये तो कांग्रेस का वोट था. जो लोग बोल रहे हैं बी टीम, कांग्रेस वाज द बी टीम फॉर सीपीएम इन 2018. आई वाज वर्किंग प्रेसिडेंट. कांग्रेस ने कैंपेन ही नहीं किया सीपीएम को जिताने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए. तो आज के दिन कांग्रेस एंड सीपीएम, यू आर टॉकिंग अबाउट एंटी बीजेपी. द ओनली, मैं एक बात बोलता हूं, प्लीज डोंट माइंड, मैं हंसी मजाक में बोल रहा हूं. असली कांग्रेस तो मैं हूं. मैं ना बीजेपी के साथ गया ना सीपीएम के साथ गया. असली कांग्रेस तो मैं हूं. मैं आज तक इंडिपेंडेंट रहा हूं. जो लोग ने पूरे जिंदगी एक पार्टी के खिलाफ फाइट किया, जिसका वर्कर को पीटा गया, आज आप उनके साथ अलायंस कर रहे हैं. और जो लोग आज बीजेपी को गाली बक रहे हैं, वो टाइम एक टाइम बीजेपी में भी थे. तो असली कांग्रेस तो मैं हूं. मजाक में बोल रहा हूँ. अब ये मतलब कि वो मत कीजिए कि कहाँ ऑपोजिशन वोट डिवाइड हो रहा है. कांग्रेस के वोट से तो बीजेपी पावर में आई. और जब मैं लोकसभा में प्रेसिडेंट था, तब कांग्रेस का वोट शेयर 1% से 28% गया. सीपीएम का वोट आया नीचे. तब उस टाइम किसी ने नहीं कहा कि सीपीएम ने क्यों नहीं अलायंस किया हमारे साथ. टिप्रा मोक्ष को वोट देना ना देना की समान है, क्योंकि सरकार आएगा नहीं स्टेट में भी और केंद्र में भी. आज हेमंत विश्व शर्मा ने कहा. तो यही बात आसाम में एजीपी था ना, हेमंत बिश्व शर्मा के स्टेट में एजीपी था. एक टाइम सब लोग बोलते थे बीजेपी को वोट मत दो, बीजेपी तो पावर में नहीं आएगा, एजीपी पावर में आएगा. वो बड़ा पार्टी है, बीजेपी छोटा पार्टी है. आज एजीपी गायब हो गया है आसाम से और बीजेपी बड़ा पार्टी है. एक टाइम बीजेपी के पास सिर्फ 2 एमएलए थे, एमपी थे 1984 में. तो किसी ने बोला था कि वोट मत दो क्योंकि इनकी तो पावर में नहीं आएगा. ऐसा नहीं चलता है. पब्लिक का एक अधिकार होता है उनका वोट देना का. अगर यही माइंडसेट लेके चलेंगे ना, तो बीजेपी मेघालय में मत वोट दो बीजेपी को. मेघालय में वो पावर में नहीं आने वाला. बीजेपी को मत दो वोट मेघालय में. नागालैंड में मत दो बीजेपी को वोट. मिजोरम में मत दो बीजेपी को वोट. ये नेता का चेयरपर्सन बोल सकता है. पावर में नहीं आने वाला है मिजोरम में, नागालैंड में पावर में नहीं आने वाला है, मेघालय में पावर में नहीं आने वाला है. तो बीजेपी को मत वोट दो. जो मेरे ऊपर लॉजिक है वही उनके ऊपर मिजोरम, नागालैंड और क्या बोलते हैं मणिपुर, मेघालय में करो. नहीं, हमारे लिए अलग रूल, उनके लिए अलग रूल. ये कहाँ का होता है? तमिलनाडु में मत वोट करो बीजेपी को. तमिलनाडु में क्यों कंटेस्ट कर रहे हो आप? मत करो. केरला में मत करो. ये बोलने वाला बात होता है. हम लोग सब जानते हैं कि तिपरा मोथा पावर में आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है. सेकेंड ऑफ ऑल ये जो टेंशन है इसको दूर करना है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जो भाई भाई से फाइट कर रहा है ना, उसको दूर करना है. और वो तभी होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आएगा. असल में कोई किसी के खिलाफ नहीं है. ये नेता लोग ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है.
इसको खत्म करना है, करप्शन को खत्म करना है, नौकरी देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, अधिकार के बारे में बात करना, अधिकार देना है। आज हम लोग उसके बैकलॉग जो नौकरी है उसका क्या हो रहा है? 23,000 बैकलॉग जॉब्स अभी तक पूरा नहीं हुआ, 10,323 का कुछ नहीं हुआ, एडीसी पुलिस बिल कुछ नहीं हुआ। आज क्योंकि यहां में इतना गरीबी है, आप 100 रुपए देकर एक आदमी पार्टी का झंडा लेकर पूरा दिन वंदे मातरम, लाल सलाम या तिपरा मोथा एक लोकतोंग या भारत माता की जय बोल रहा है। जिस दिन आपके पॉकेट में पैसा आ जाएगा ना, आप लोग ये नेता के पीछे भागना बंद कर देंगे, और ये पैसा आपकी तरफ तब आएगा जब आपके पास राइट्स, अधिकार, संवैधानिक राइट्स और नौकरी और एम्प्लॉयमेंट आएगा। ये हमको सबसे पहले करना है, आपका आर्थिक स्थिति को उठाना है। BJP has already rejected demand for people. Do you think that will force BJP this time? I don't know. BJP can reject any demand. They also made alliance with PDP in Kashmir, though PDP had a different 370 का वो था. So I don't want to comment about BJP. BJP is a very big party. They have many great thinkers, many vidwans. You should ask this question to them. I'm too small a person to comment on BJP. जितेंद्र चौधरी का कहना है कि बार-बार आपसे बात हो रही है, क्या तिपरा मोथा का कोई सीट सेटलमेंट है? मैं अभी आपके सामने फोन लगा देता हूँ जितेंद्र चौधरी को। क्या बात हो रही है? क्यों कह रहे हैं? मैं क्यों नहीं बात करूं जितेंद्र चौधरी से? वो अच्छा इंसान है। मैं सुदीप राय बर्मन से क्यों नहीं बात करूं? वो भी अच्छा इंसान है। जिष्णु करता से क्यों नहीं बात करूं? अच्छा इंसान। लेकिन मैं सीपीएम के संग अलायंस कर रहा हूं? एकदम नहीं। मैं राहुल गांधी से बात करता हूं तो क्या मैं कांग्रेस से अलायंस कर रहा हूं? मैं हेमंत दास से मेरा मीटिंग हुआ तो क्या मैं बीजेपी के साथ अलायंस कर रहा हूं? दोस्ती एक तरफ, शुभ चिंतक एक तरफ, और अपना राजनीति एक तरफ, अपने लोग एक तरफ, अपना पर्सनल रिलेशनशिप एक तरफ। तो हाँ, मैं बात करूंगा, क्यों नहीं बात करूंगा। अगर प्रतिभा पाटिल के खिलाफ बाला साहब ठाकरे कैंडिडेट नहीं देती है क्योंकि वो महाराष्ट्रन थी और बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के थे, तो किसी ने उंगली उठाया? वो तो एनडीए में थे, वो तो यूपीए में थे। जब ममता बनर्जी जो यूपीए में नहीं थी, उन्होंने कहा कि हम प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो बंगाल का है, तो किसी ने उंगली उठाया? तो इसी तरीके से मैंने बिरजीत सिन्हा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया, मैंने जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया, मैंने अगरतला में क्या बोलते हैं राजीव जो बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है राजीव बनर्जी, उनके खिलाफ नहीं दिया। क्यों दूं? ये मेरा चॉइस है। मुझे दिल्ली से तो ऑर्डर नहीं आता कि किसके इशारे में काम करो। Last question: why you are not contesting this? Because I already told you it was not about me. I never said I wanted to be the chief minister of Tripura. I never said I wanted to be a minister. I never said I wanted to be the Rajya Sabha MP. I wanted to give something to my people, and my commitment here. Bijay Rankhwal is not contesting. Jagdish Babu is not contesting. I am not contesting. 3 of our top leaders are not contesting because we want to send a message to the people that this is not about us. It is about the people. And if you want to make a sacrifice, अगर आपको बलिदान देना है ना, तो ऊपर से देना पड़ता है। तब वर्कर को समझ में आता है कि ये राजा या विजय बाबू या जगदीश बाबू अपने स्वार्थ के लिए नहीं काम कर रहे। मैंने अपने फैमिली से भी किसी को नहीं दिया। मीडिया ने तो बता दिया था कि मेरी बहन लड़ रही है। पहले बोला बीजेपी के संग अलायंस, उसके बाद बोला बहन लड़ रही है, तब बोला मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो 1 साल से मैं बोल के आ रहा हूँ, ये लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप मुझे नहीं चाहिए। मुझे लोगों को पावर देना है। 5 आदमी को या 10 आदमी को या 20 आदमी को एमएलए मंत्री बना के हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें लोगों को अधिकार देना। One final question. One final question. There are so many players in the election this time. हाँ, What is your assessment of the election? there are many players, but there is only one captain. आईपीएफ के पहले आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार थे, अचानक 5 सीट से फिर से बीजेपी के साथ अलायंस हुआ हो गया। आपको क्या लगता है आईपीएफ की सीट आपकी सीट की लालच से चला गया? नहीं, उनके ऊपर प्रेशर है ना। आईपीएफटी के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। देखो 5 साल तक वो लोग ने राज किया है। अब ये उनका लास्ट चांस है इलेक्शन में। इसके बाद पावर में नहीं आएंगे तो उनको भी तो दरकार है, उनका भी तो घर संसार चलना है। तो बीजेपी ने शायद कुछ गैस सिलेंडर ऑफर किया होगा उनको। Sir, Himanta Biswa Sharma yesterday said, your family, the royal family, created Tripura. हाँ। And now why are you trying to, divide Tripura by demanding better state of life?
My family created Tripura. My family merged into Tripura. But the government of India has divided Tripura in the name of religion, in the name of tribal, non-tribal, in the name of ADC, non-ADC. I did not divide Tripura. This division started very long time ago when governments did everything to deprive one community over another, deprive one religion over another, SC, ST. They have done it. I have not done it. And I am still willing to talk. But it should be in writing. It should not be verbal. And Hemanta Da is a good friend of mine. I know आप लोग ले जाएंगे. He's a good friend of mine. He was a Congress colleague of mine. We were Congress members for a very long time. Hemanta Da is a Chanakya of Northeast. But I am the Manikya of Northeast. So please do not do too much. हमें अपने कैंडिडेट नहीं किया जनरल एरिया में, उन लोग कहाँ वोट देगा ऐसा करके प्रेस मीट किया उन्होंने। किसने बोला? जो छात्रों में है, तो उनका आप क्या बताइए? उनको बोलो कि दिल से वोट करने के लिए, और जहां में उनका दिल आता है वहां में वोट करने के लिए। सिर्फ साबरूम क्यों? अगरतला में भी तो है, बनमालीपुर में भी। आप साबरूम का क्यों बोला? आप अगरतला में क्यों नहीं उन लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? देखो देखो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगरतला में क्यों नहीं किया? कैलाश शहर में क्यों नहीं किया? एक लास्ट मतलब you have made several promises welfare but resource has been a big problem. Resource is never a problem, my friend. Resource is never a problem. I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। ADC में जब मैं बोलता हूँ कि मुझे 20 करोड़ रुपया दो नौकरी के लिए, ये लोग नहीं देते हैं। लेकिन अगर 100 करोड़ रुपया आप मांगो ना, तो लोग दे देते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। क्योंकि त्रिपुरा में हमको सिर्फ बिल्डिंग बनाना है। बिल्डिंग में पॉलिटिशियन खाएगा 10%, कॉन्ट्रैक्टर खाएगा बाकी का रुपए, और बिल्डिंग को देखकर किसी का पेट नहीं भरेगा। आज हम लोगों को नौकरी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इमारतें बना रहे हैं। एडीसी में इतना बिल्डिंग है, आधा बिल्डिंग खाली है, लेकिन हम लोग नौकरी नहीं दे सकते हैं, किसी का सैलरी को बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा आ जाएगा, IMF से पैसा आ जाएगा, लेकिन किसी को नौकरी देने के लिए एक पैसा नहीं है। तो ये जो पैसा है, इसका आपका प्लानिंग ठीक करना पड़ेगा। अगर आप प्लानिंग ठीक करो ना, तो गवर्नमेंट का आधा काम सुविधा हो जाता है, ठीक हो जाता है। आज अगर यहाँ में इंडस्ट्री लाओ ना, यहाँ में अगर आप टूरिज्म को बढ़ावा दो ना, तो बोलते हैं छोटा स्टेट कुछ नहीं कर सकता। तो गोवा कैसा पैसा कमा रहा है? हमारे पास क्या टूरिज्म के लिए नहीं हो सकता? हमारे पास डुम्बुर नहीं है, हमारे पास सिपाही जाला उन्नुकुटी नहीं है, हमारे पास नीर महल नहीं है, माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर नहीं है। मदुरई में कितना कलेक्शन होता? हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ में यूथ लोग, हजार यूथ लोग हैदराबाद में, बंगाली, ट्राइबल्स, मणिपुरीज, मुस्लिम्स, हजार यूथ बैंगलोर में, हैदराबाद में काम कर रहे हैं। यहाँ में एक वर्ल्ड क्लास कॉल सेंटर क्यों नहीं बन सकता? IT हब क्यों नहीं बन सकता? यहाँ में 10,323 टीचर के पास नौकरी नहीं है, और हम लोग टीचर रिक्रूटमेंट बाहर से टीचर को लेके आ रहे हैं। तो पैसा है, लेकिन पैसा सिर्फ दो लोगों के पास जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिटिशियन। ये पैसा अगर एम्प्लॉयमेंट में दिया जाए ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लिक्विडिटी है गांव में, वो डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। किसी को शहर नहीं आना पड़ेगा, वहीं में आपका व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनेगा, ब्लॉक लेवल में बनेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम इंप्रूव होगा। लेकिन ये बात कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि आप ड्रग्स को रोकना चाहते हैं। ड्रग्स प्रॉब्लम है ना, तो आप बताइए, इसको टैकल करने के लिए हम क्यों नहीं हम टैकल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पैसा में, सब पॉलिटिशियन के हाथ में पैसा जा रहा है। तो ये सब है, ये सबको टैकल करने के लिए थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा, वी नीड अ चेंज इन सिस्टम। এই আমার হাতে নেই, আমি রেজলিউশন পাস করতে পারি। এই তো রাজ্যের হাতে নেই, আমি রেজলিউশন পাস করতে পারে, এম্পাওয়ারমেন্ট করতে পারে, ল্যান্ড রাইটস দিতে পারে, डायरेक्ट फंडिंग करते पारे। लेकिन गवर्नमेंट को तो बात करना पड़ेगा ना, या ऑपोजिशन को तो बात करना पड़ेगा ना। हमने बोला है कि हम अपने डिमांड को में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम वायलेंस में आएंगे। हाँ,
टिप्पा इलेक्शन कैंपेन में आमिर खान को कैंपेन में लाया जाएगा, कितना दिन तक रहेगा? आमिर खान, हम लोग तो गरीब खान है रे, हम लोग तो क्राउड फंडिंग कर रहा है। और उसमें भी बीजेपी का एक आपका एक चैनल है स्ट्रेट लाइन, उसने बोल दिया राजा भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है, हम आशीर्वाद मांग रहा है। 1 रुपया भी, गांव का एक गरीब जनजाति 1 रुपया मुझे दे रहा है, 500 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया दे रहा है ना, वो ड्रग स्मगलर से रुपया लेने से या उद्योगपति अदानी से रुपया लेने से ज्यादा अच्छा है। तो हमारे पास कोई अमीर खान नहीं आएगा, लेकिन हाँ गरीब खान है यहाँ में। शाह आलम तो गरीब नहीं है, लेकिन हाँ ये है सेंटू मियाँ, गरीब खान बहुत है। कोई स्टार कैंपेनिंग का दरकार नहीं है, यही स्टार कैंपेनर है। आप लोग, हमारा जो वोटर है वो स्टार है। हम लोग, हमारे पास हेमा मालिनी को लाने के लिए पैसा नहीं है, या उनका पास इतना वो भी नहीं है। हाँ, that you had proposed to them that you are in favor of Article 244. yes, I said we can talk about it. I told that to BJP also. We can talk about it, but in writing. So you are ready. I said we can talk about it. I am not a fanatic, but we have to talk about it. It has to be transparent. It has to be in paper. I have to show it to my people. I don't know your name, my friend. I am not well. जब मैं मरूंगा तो क्या मैं ये पैलेस को और अपना पैसा लेकर ऊपर जाऊंगा? आज मैंने अगर अपने लोगों को धोखा दिया तो मैं त्रिपुरा में आंख से आंख मिलाकर किसी को बात नहीं कर सकूंगा। मैं अपने लोगों के लिए कुछ फाइट कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं फाइट कर रहा हूँ, वरना एमएलए का टिकट ले लेता, राज्यसभा का नॉमिनेशन ले लेता। और टोटल कैंडिडेट कितना, 41 या 42? 43 था, लेकिन ये कैंसिल हो गया। ठीक, थैंक यू प्रशांत। ओह यस, आई हैव सीन। ठीक है, थैंक यू सो मच, हाँ थैंक यू, Wish you all the best. थैंक यू सो मच। ये भी रख लीजिए।